MSMEs, they start the business, अपना पैसा लगाते हैं, they work 20 hours in a day, everything they do. But 60% of the MSMEs die within 3 years. और ये होने का reason यही है. There is something because of which I am able to close the sales the way I want. So I tried to figure it out using 3 dimensions in sales. Sales as science, sales as art, and the third dimension is the human psychology. Because ultimately you're dealing with humans. If you're able to control the next person's behavior, you're 50% done. अगर ये 7 milestones बराबर से आपने जो समय पे जो करना है वो करते चले गए, 20 से 25 साल में आप अपनी कंपनी को ऑटो पायलट मोड पे डाल के आप निकल लोगे, वो कंपनी फिर भी आपको पैसा कमा के देगी और आपके बाद आपकी जनरेशन को कमा देगी. मेरे को एक बात बताइए, when you start a business, you have an accountant? Yes. What? Bookkeeping and everything. Why don't you do it yourself? Exactly. Because I don't know bookkeeping. And he realizes that. But now when it comes to sales, ये entrepreneur की मनमानी है. अकाउंट के लिए अकाउंटेंट रख लूंगा. But sales मुझे आता है. वो मैं ही करूंगा. आज ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो सेल्स या कंपनीज में रहती है, सेल्स डिपार्टमेंट में? सेल्स पर्सन को सही तरीके से हायर नहीं किया जाता. सेकंड इज द जिसकी वजह से बहुत लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है कि लोग 1 महीने में छोड़ के चले जाते हैं. Welcome everyone to our YouTube channel VK Talks. Today I would like to introduce fighter Sushil Agarkar. He's a sales coach who trained over 1 lakh sales professionals and transformed 10,000 SMEs. He's a founder at Alpha Chase Advisory Private Limited. Today we are talking about what's not working in the SME sales and how it can work. Thank you very much. Welcome, Sushil sir. So we'll start the episode with how do you come up with the idea of sales coaching or developing and managing the sales channels for the companies or MSMEs specifically? Okay, विश्वेशी क्या है कि I have spent my 30 years, precisely 32 years in sales. Okay. And I started my journey as a sales executive. Okay. So I'm not a coach, not a trainer. Okay. I'm not a consultant. Basically a salesperson. Okay. So 30 साल पहले, 32 साल पहले जब as a sales executive चालू किया था, and from sales executive to team leader, assistant sales manager, and national sales manager, like this have grown really fast. Right. और एक एज पे आने के बाद, when I was like last designation was a CEO of a company, इसके आगे क्या? और ये पूरा जर्नी में, पूरा 30 साल में, I was associated with MSME, right? Right. और MSME का एक प्रॉब्लम नजर में आया जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला था. Okay. And that problem was, MSMEs, they start the business, they're highly motivated. All right. They do bootstrapping. Yes. अपना पैसा लगाते हैं, है ना? वो मोटिवेशन के साथ चालू करते हैं. They work 20 hours in a day. Everything they do. But 60% of the MSMEs die within 3 years. Oh. Huge number. Yes. And ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा. लोग बिजनेस चालू करते हैं एंड 3 साल के अंदर अंदर या तो बदल देते हैं, या तो बिजनेस से बाहर निकल जाते हैं, या तो बिजनेस बंद हो जाता है, कुछ ना कुछ तो हो जाता है. Right. एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर. Absolutely. बचे जो 40% है, इसमें से आई से 1 or 2%, ये नंबर भी बड़ा है, which are who are able to make it to 1,000 crores and 2,000 crores. Right. Few percentage are able to touch 200 crores, 500 crores. But again, out of this 40%, I'll say 90% are struggling. They keep struggling throughout their life. And they one fine day, अगर उनके बच्चों ने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, again, तो shut it down. Succession issues is very very rare, right? कि उस सक्सेसर आके वो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. अभी बहुत
that is the thing which we are observing in many businesses, prominently in current scenarios. एग्जैक्टली और ये होने का रीजन यही है क्योंकि वो बिजनेस कभी भी सेल्फ सस्टेनेबल हुआ ही नहीं. Okay. और जब बिजनेस ही सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हुआ एंड मेनी एंटरप्रेन्योर्स दे कंप्लेन कि मेरा बेटा उसको पढ़ाया वो जाके नौकरी करता है, ही डजंट वांट टू कम एंड जॉइन माय बिजनेस. मतलब व्हाट्स रॉन्ग इन इट? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इफ the corporates can provide him better perks, better salary, better lifestyle, why will he come and join you? If you would have created something where the kind of cabin what a corporate can give him, your company can give him that kind of a washroom. Washroom, like his cabin. Do you really think he will go and work for someone else? Nothing. No. So this concern that why these entrepreneurs are not able to take it to the next level. And I realized one thing, that there is, you have multiple departments in every organization. Rest of the departments, people somehow manage. But when it comes to sales and marketing, they don't have a solution because you don't have an education. Right. There is no formal education for sales. And entrepreneurs ये मनमानी करते हैं, मैं चला लूंगा. हाँ. राइट. और वो मनमानी के चक्कर में समय निकलता चला जाता है. And one fine day you don't have an option rather than saying just give it up. छोड़ दो. So yes, you will find thousands of sales trainers, thousands of sales coach. None of them is ready to take the responsibility of the numbers. Yes. Right. And that's where I found now there is a scope, is a vacuum here. There is a gap. Huge. There's no one. Yeah. No one on this planet where someone can say, I will coach you, I will train you till I increase the numbers. Exactly. Right? So with this thought process, Chase was formed. Right. That we are not going to be a consultant, we are not going to be trainers, we are going to be the business partner of Indian MSME. Right. And give him what exactly is needed to upscale him. Right. Okay. So before Chase, you said you were in 30 years in sales. So could you more elaborate about your previous journey, which made you so efficient as a sales trainer, sales coach, and gave you this idea? As I said, I started my journey with Cipla. Right. As an MR. Okay. So I was the one who's to take the bag. But again, there also, I could think something out of the box that I want to sell the medicines, but I don't want to do it the conventional way, what the other MRs are doing. Right. So I used to focus more on building the relationship with the doctors. Okay. I really remember that I have opened any folder in front of them, but I have always surpassed my targets. Oh. Right. So relationships can be built that ways. And if the relations are built that ways, doctors are going to prescribe your medicine. Simple as that. Then I moved to IndiaMart, again from pharmaceutical to IT. Yes. Okay. And IT, again, since I'm changing the industry, I have to come down on my profile, come down on my designation, come down on my salary, and join that industry. Okay. Right. So started working with IndiaMart and grown really fast with IndiaMart because I don't remember even a single month in my career where I must have missed my target. Okay. So I worked with IndiaMart for almost like 3 years. I've headed their complete Western zone. Okay. Then from there, I moved to TradeIndia.com as a zonal manager where the complete Western zone for Trade India, I was heading it for them, Mr. Vicky Khosla.
And then I was a business head for an IT company. And we have taken that, it was a startup again. We have taken that startup from zero to having an office in US. Oh, Zero to to in office in US in 7 years. right. Done fantastically well there also. Ventured into exports, right? So you can say, and again, everything is connected to sales. Sales, right, Because this growth is only possible if you know how to sell. right. So last assignment was as a CEO and a managing director of a company. But then I thought, what next? Right. Because इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा था. So one fine day, you can say, it was not by choice that I am a coach. It is by chance. It is by chance. It is by chance. Okay. So one fine day, something has happened. Situations were like that. So I thought of let's give it to the society what others don't have now. Right. So I thought of why not to give this what I have. I don't know. There is something because of which I am able to close the sales the way I want. Right. Right? There is something. So I tried to figure it out using three things, three dimensions in sales. As sales has science, sales has art, and the third dimension, which nobody has even thought about it, is the human psychology. Because ultimately, you're dealing with humans. Right. If you're able to control the next person's behavior, you're 50% done. Okay. Right? So I started documenting it. In fact, I've written a book also over it, right? Right. Which is available on Amazon and Flipkart. So objective was making sales in a simpler way, where a non-salesperson should be able to understand it. Right. That was the basic objective of starting Chase. Okay. So, sir, the pattern, what pattern do you see in after teaching around 30,000 sales? 1 lakh, 1 lakh sales professionals we have trained till now, and more than 10,000 MSMEs we have transformed. You have transformed, right? Right. I personally have built the sales team for more than 350 plus organizations in India in all possible industry, whatever you can think of. So from a needle till an aircraft, you think about an industry, and I can say I have a client. Okay. So, what pattern do you observed in these professionals in your course of journey? What kind of patterns that people are following, and which are the wrong patterns? Okay, I'll say first of all, when we talk about sales professionals, when we talk about sales professionals, people who have spent 20 years, 30 years, 40 years in sales, I'm sorry to say, they don't know sales. I'm really sorry to say this. They don't know. Yes, they have grown because of the number of years in the service, which anyone will do, right? You know, if I ask you, if you go and ask them just a simple question, according to them, what is sales? It's a science or it's an art? Everybody will say art. Art, right? So the first question, which is a lower kg and upper kg question in sales, is this: what is sales? And you get a wrong answer. Okay. So people do not understand the depth of sales, first of all. You know, and if you ask the second question, if you ask them that from where have you learned sales? What's the answer? What do you think? What answer you might get? In MBA. MBA doesn't have even 4 pages of sales. Philip Kotler
The Bible of marketing doesn't have even 4 pages of sales. So if you ask anyone, someone who has spent 30 years and 40 years in sales, go and ask him from where you learned the sales. Answer, I'll tell you what you get. अपने आप सीख गया, मार्केट ने सिखाया, मेरे बॉस ने सिखाया. अब बॉस को किसने सिखाया मेरे को नहीं मालूम, बॉस ने सिखाया. वो ऐसा रोज मार्केट में जा जाके लोगों ने सिखाया. राइट. नाउ यू हैव टू आस्क अनदर सब्सिक्वेंट क्वेश्चन टू दिस. अपने लाइफ का कोई एक, बिकॉज वी से सेल्स इज अ स्किल, राइट? स्किल, राइट. सो टेल मी वन स्किल ऑफ योर लाइफ which you have learned without anyone teaching you. अपने आप मार्केट से, क्लाइंट से मिलके ऐसा कौन सा एक स्किल बता दो. और आज मैं आपको और आपकी पूरी ऑडियंस को ये ओपन चैलेंज कर रहा हूं. एक स्किल आप मेरे को बता दो, मैं अपनी 8 साल की कंपनी आज बंद कर दूंगा. एक स्किल बता दो. सेल्स इज अ स्किल, राइट? राइट. तो सेल्स को छोड़ के कोई एक स्किल बता दो जो आपने अपने आप सीखा, मार्केट ने सिखाया, दोस्तों ने सिखा दिया, या चलते फिरते सीख गए. कोई नहीं, कुछ नहीं. तो आप कैसे ये मान लिया कि सेल्स आपने ऐसा सीख लिया? एक्चुअली जो सीखा है वो सही सीखा है या गलत सीखा है, उसका वैलिडेशन किसी ने किया ही नहीं है. नहीं है. Right? So problem is because sales doesn't have any formal education in any of your curriculum. राइट. कहीं भी नहीं है. कहीं नहीं. और जो चीज आपने कहीं से सीखी ही नहीं, आज आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, आपके बच्चों का करियर, आपका रिटायरमेंट, सब कुछ डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? सेल्स के ऊपर. सेल्स के ऊपर. So I strongly advise all sales professionals. ठीक है, बहुत अच्छी बात. I never say, after 30 years also, I never say that I have an experience in sales. If you see my designation, it says I'm a sales practitioner. Right. But today, if you go to market, if you ask someone who has a 5 years of experience in sales, उसका लैंग्वेज बदल जाता है. हाँ. टारगेट उसने 5 साल में एक बार भी पूरा नहीं किया रहेगा. मेरे को मत सिखाओ, मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है. अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यू शुड हैव मास्टर्ड इट टिल नाउ. राइट. नहीं कर पाया. राइट. सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू सेल्स पीपल. First of all, at whatever age and whatever stage of life you are today, go and learn. The sales. Learn sales properly. Exactly. And if you do that, it can directly have an impact on your bank statement. Simple as that. Okay. So, what are the most common complaints you hear from the SME owners about their sales? Okay. First of all, अगर SME owners की बात करें, complaints तो बहुत है, but वो actually वो complaints होनी नहीं चाहिए, because they have been made by them. Okay. तो why they complain? I don't know. I'll tell you why. Complaints like sales down है, market में competition build हो रहा है, भाव गिराना पड़ रहा है, क्लाइंट डिस्काउंट मांगता है, क्रेडिट पे माल दे दिया, फंस गया, है ना? सेल्स टीम रखी है पर काम नहीं कर रही है, टारगेट्स पूरे नहीं कर रही है ना? प्रोडक्टिविटी, ये सब है, सब ये नॉर्मल. और एक नहीं, आप किसी भी एमएसएमई को पकड़ लो, सबका दर्द ये है. सबका दर्द यही है. मैं बोलूंगा एक भी नहीं छूटेगा उसमें से. सबका है. पर ये दर्द होना नहीं चाहिए. ये चैलेंज उनका होना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि ये उनका बनाया हुआ चैलेंज है. अच्छा. मेरे को एक बात बताइए, जब when you start a business, you have an accountant? Yes. Why?
bookkeeping and everything. Why don't you do it yourself? Exactly. That's because I don't know bookkeeping. Right. I don't know debit credit. I don't know tally. And he realizes that, most important. Okay? But now when it comes to sales, मैंने बोला ना वो एक वर्ड है. मैंने बोला ना एक वर्ड है, हाँ. मनमानी. मनमानी. Okay. तो ये एंटरप्रेन्योर की मनमानी है. अकाउंट के लिए अकाउंटेंट रख लूंगा, बट सेल्स मुझे आता है, वो मैं ही करूंगा. अच्छा, और साल बाय साल सेल्स डाउन हो रहा है, टर्नओवर डाउन हो रहा है, और जो लोग इवन एक लेवल पे पहुंच भी गए, वो एक टर्नओवर पे अटके हुए हैं पिछले 4 साल से 5 साल से. राइट. 5% 10% ऊपर नीचे मूवमेंट चल रहा है, पर अटके हुए एक ही टर्नओवर पे. फिर भी आंखें नहीं खुल रही है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग. यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग. नहीं तो ये अब इफ एन एंटरप्रेन्योर थिंक्स, इफ अ बिजनेस ओनर थिंक्स उसका लाइफ 200 साल का है, तो मैं दिल से चाहता हूं दुनिया 200 साल जिए. तो probably you'll be able to take your organization to 50 crores and 100 crores. But unfortunately 200 नहीं है, 99 ही है, या 199 ही है. So you have to go really fast. Right. And when you have to go really fast, you cannot afford to make mistakes. It's simple as that. From here, if you want to reach Mumbai, what is the distance? 200 kilometers. 200 kilometers. Average traveling time? 3 hours. 3 hours, 3.5 hours, 3.5 hours. right? And if you don't know driving, and you go with a speed of 1, 2, 5, 10 kilometer per hour, when you're going to reach? In the 200 years. Right. Exactly the same thing. So if you have to take your organization from one level to the next level, first of all, you have to be very serious about it. And once you're serious about it, you need to have a driver. Right. Have that driver, or learn driving to that extent where you can drive that vehicle in 3 hours to the destination. Right. Entrepreneurs, वो सब चीज पे खर्चा करेगा, रिस्क भी लेगा. But when it comes to developing the sales department, बहुत डरता है. Maybe छोड़ के जाने का डर है. हाँ. Living and joining competitors. Yeah. Very true. Very true. एक entrepreneur, when you set up a manufacturing unit, you put capital investment, capital goods, machineries, plant worth crores. So, right? Right. Why don't you have the same thought on that day? अगर फ्लड आ गया तो, मेरा मशीन्स खराब हो गया तो, you don't have that thought, right? नहीं. तो वो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट वो थॉट नहीं है, बट सेल्स टीम डेवलप कर, विच इज अच्छा, दैट मशीन इज एनीवेज गोइंग टू कंज्यूम ऑयल एंड मैन पावर एंड एवरीथिंग. Yes. राइट. उधर वैल्यू डिप्रिशिएट होने वाला है. Right. Here you are developing a team which is a revenue department of your company. If you are able to do it well, it's going to multiply the amount in your bank account and your balance sheet. Yes. Right. So when you can take crores of rupees of investment, crores of rupee investment, capital investment, why can't you take this much of risk for developing a sales team? Because this works. This you can double it again. Yeah. But you make this, you don't make this, and their sales drops. Probably even ये रख के करेंगे क्या? कुछ नहीं. Exactly. So in fact, everything comes down to a mindset of an entrepreneur. Right. And the mindset should be, मशीन बाद में आएगी, पहले सेल्स वाला आएगा. Okay. ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर बनाने के लिए समय मिलता है. बराबर. मशीन आ गई, ईएमआई चालू हो गई, फिर सेल्स वाला ढूंढने जाओगे, तब तक आपका मैन पावर, लेबर, मशीन, बैंक, इंटरेस्ट सब चढ़ रहा है. बराबर.
कहानी थोड़ी सी उल्टा करना जरूरी है, Okay. एंड एवरीवन इज प्लेइंग दिस वे. Yes. सो वो माइंडसेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा माइंडसेट बदलना जरूरी है. So पहले ऑर्डर लाओ, फिर बाकी. एग्जैक्टली, पहला रेवेन्यू टीम रेडी करो. अच्छा, आप इधर करोड़ों रुपया डाल के बैंक का इंटरेस्ट भरते हो, फिर इंतजार करते हो, लाखों का इंटरेस्ट जाता है ना महीने का, फिर इंतजार करते हो कि सेल्स में ऑर्डर आएगा कुछ. तो लाखों का इंटरेस्ट डालने से अच्छा हजारों इन्वेस्ट करके 20-15,000 रुपीज 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करके, व्हाई कांट यू वर्क ऑन सेल्स टीम फर्स्ट Right. and develop the market first. Market warm karo, market garam karo. It will even give you a first level of research information whether I should get into this product and do this kind of investment or not. अगर आपको मालूम पड़ता है ये प्रोडक्ट तो आजकल कोई चलता ही नहीं है या इस भाव पे नहीं बेचा जा सकता इसको, why you're investing that crores of rupees? It can work. The sales team is not only a revenue department of your company. It can work like an insurance for your all other departments. So it is a matter of shift the thought process, mindset. वो एक कन्वेंशनल तरीके से बाहर आके सोचना जरूरी है. Okay. Someone has to challenge that status quo. Right. And if no one challenges, this will keep on continuing. MSMEs will keep on struggling. There's no end to it. There's no, and everyone is not lucky that one fine day suddenly उसको 1,000 crore का order मिल गया. मिल भी गया, how is he going to execute it? एक साथ इतना एकदम से आया तो he may fumble. Many times you have to leave the order. Right. If you don't have that, your facility doesn't support you, you might have to leave the order. Right. I won't be able to fulfill this order. Yeah. So, in your observation, what is the real pain point? Is it the real salespeople or sales processes? The most important pain point is the entrepreneur. Okay. नहीं मानने के लिए तैयार है. विश्वेश जी, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है कि सेल्स हमारे बस की नहीं है, हमें किसी को रखना पड़ेगा. अच्छा, किसी को रखने के बाद वो क्या चाहते हैं, आज किसी को आपने जॉब पे रखा तो कल से ऑर्डर्स ऐसा लाइन लग जाना चाहिए. ROI. हाँ, ROI. ये ROI वाला थॉट प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू योर प्लांट एंड मशीनरी, वो नहीं आता है. वो क्या आता है, आप भी लगाया ना, आएगा. बिजनेस है, टाइम देना पड़ता है, ये लैंग्वेज है, थोड़ा टाइम दे. ये टाइम इधर क्यों नहीं दिया? अच्छा, यहां पे बंदा लेते जरूर है, पहली बात तो लेते नहीं है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. एक एंटरप्रेन्योर है, ये वो है, इसको सब कुछ आता है. हाँ. ये किसको कोई पढ़ा नहीं सकता, इसको कोई सिखा नहीं सकता, इसको कोई कुछ बता नहीं सकता, ना ये किसी की सुनेगा. ये खुद करने की कोशिश करेगा, जितना हुआ ठीक है, नहीं हुआ राम राम. बराबर. दूसरा है जो कोशिश जरूर करता है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वो आप कोशिश अगर सही डायरेक्शन में ना करो तो वो कोशिश कभी भी सफल नहीं होती है. राइट. तो ये आदमी जरूर रखता है, बट बाद में आदमी रखने के बाद ही उसके रोज ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना चालू होता है. जब भी वो आदमी को देखता है, अब इसका पगार देने का टाइम आ गया, अब ये पगार लेके जाएगा, ये पैसा नहीं लेके आ रहा है इसका, राइट. 2 महीना हो गया, 3 महीना. अरे भाई, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पर 2 महीना 3 महीना क्यों नहीं दे पा रहा है, वो क्यों किसी ने सोचा नहीं. वो आदमी जरूर ले लेता है. अब मैंने आपको पहले जैसे बताया ना, सेल्स में जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बिता दी, पहले सवाल में ही गलती कर देते हैं कि सेल्स क्या है. मतलब ये 2 साल 4 साल का बच्चा, जो 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो बच्चा जो आपको ज्वाइन कर रहा है, आप ये मान के चल रहे हो उसको सेल्स आती है. अच्छा, आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है धंधा चलाने में, क्या आपको आती है?
नहीं, मतलब एक एंटरप्रेन्योर को 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्या उनको खुद को आती है? नहीं। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो 2 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को आती है, वो बेचारा फेल हो जाता है। अच्छा, उसको ट्रेनिंग नहीं देते, और आप ही के शब्द है ना कि उस पर खर्चा करेगा, भाग गया तो, हाँ, है ना? तो यही सोच के साथ उस पर खर्चा नहीं करते। अब उस पर जब खर्चा नहीं किया तो उसकी धार ही नहीं बढ़ाई हमने। अब आप ऐसा चाकू लेके घूम रहे हो जिससे आप टमाटर भी नहीं काट सकते और आप चाहते हैं ये बंदा आपकी कंपनी को 50 करोड़ पे ले जाए। विश्वेश जी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यू नीड टू इन्वेस्ट इन पीपल, यू नीड टू एनहांस देयर कैपेबिलिटीज। आपको लोगों की काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। राइट। द रीजन फॉर दैट इज, आप और मैं, वी आर नॉट रिलायंस, वी आर नॉट टाटास, वी आर नॉट बिग कॉर्पोरेट्स, इन्फोसिस, जहां लोगों की लाइन लगी हुई है आपको ज्वाइन करने की। राइट राइट। एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं ना, हमें अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। वो तो क्यों मिलेंगे? मेरा सवाल यही होता है, क्यों मिलने चाहिए? मिलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा आदमी आपके साथ और मेरे साथ तो काम नहीं करेगा, पक्की बात है। उसके लिए एक बड़ा कैबिन, उसके लिए गाड़ी, उसके लिए पर्क इन्फोसिस ने, रिलायंस ने, टाटास ने रेडी कर रखे। बराबर। तो आपके साथ और मेरे साथ क्यों काम करेगा? नहीं करेंगे। नहीं करेगा। वो जो टैलेंट है ना, एक कैटेगरी, जैसे मिस्टर सुंदर पिचोई, या गूगल उठा के लेके जाता है भाई। तो हमको और मुझे जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है बी और सी कैटेगरी ही। मान के चलिए, इसको इधर बैठा लीजिए, ए कैटेगरी आपको नहीं मिलेगा जब तक आप वो एक लीग में नहीं पहुंच जाते। तब तक आपको बी और सी लेके, उनको बना के, उनको तराश के अपना जर्नी पूरा करना पड़ेगा। सो you'll have to take people, you'll have to train them, and then you'll have to make them perform. ओके। और इसके बाद आता है आपका सवाल, शुरू होता है कि सिर्फ पीपल या प्रोसेस। तो इसके बाद प्रोसेस। तो पहली बात तो एंटरप्रेन्योर्स को सेल्स में प्रोसेस है, सेल्स क्या है यही नहीं मालूम। प्रोसेस तो एक और लेवल पे दूर की बात है कि प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है। तो फिर सेल्स प्रोसेस, सेल्स मैनेजमेंट, ये सब, सेल्स स्ट्रैटेजी, ये सब इसके बाद की कहानी है। तो पहले तो यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग है, ये क्लियर करना पड़ेगा कि इसके बिना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है ही नहीं। आज आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो, और इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव ग्रोन, शो मी दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज विदाउट अ सेल्स पर्सन। Or if it is not so, that means every grown organization had a sales team. If you want to grow, you have to. Right. So, entrepreneurs needs to understand this, realize it on time. ये पूरा गेम ना बिजनेस चालू करने से 20 साल तक का ही है। लोग सोचते हैं जिंदगी बड़ी है, सिर्फ गेम 20 साल में। अगर आप 20 साल में सही माइलस्टोन पे सही चीजें करते चले गए तो 20 साल में आप अपनी कंपनी को ऑटो पायलट मोड पे डाल सकते हो। ओके। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसके माइलस्टोन फिक्स है। राइट। 5th स्टैंडर्ड में 1st स्टैंडर्ड, 13 साल की उम्र में 10th स्टैंडर्ड, 17 साल की उम्र में 12th स्टैंडर्ड, 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन, 21 साल में ग्रेजुएशन, एंड 23 में पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर एक बच्चा 25 साल तक 10वीं क्रॉस ना करे, व्हाट डू यू थिंक, सक्सेसफुल बनेगा? नहीं। एटलीस्ट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं। हाँ, बाद में वो कुछ कर जाएगा तो वो बात अलग है, बट नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसेस में ही डिफिकल्ट है ना? या यू हैव अ चाइल्ड, बायोलॉजिकल चाइल्ड, आपका बच्चा हो गया 5 साल का, आपका मन नहीं कर रहा है उसको स्कूल भेजने का, मत भेजिए। नहीं कर रहा है मन, अगले 5 साल तक नहीं भेजेंगे, चलेगा? चलेगा? नहीं। ये
यही मनमानी एंटरप्रेन्योर्स अपने धंधे के साथ करते हैं। यही चीज अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं बोला कि मुझे नहीं लगता कि उसको अभी स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि उसको तो अपन घर पे पढ़ा सकते हैं, राइट? सेम वे जैसा एक बच्चे के लाइफ में माइलस्टोन्स है ना, बिजनेस में ऐसे 7 माइलस्टोन्स है। अगर ये 7 माइलस्टोन्स बराबर से आपने जो समय पे जो करना है वो करते चले गए, 20 से 25 साल में आप अपनी कंपनी को ऑटो पायलट मोड पे डाल के आप निकल लो बाहर, वो कंपनी फिर भी आपको पैसा कमा के देगी और आपके बाद आपकी जनरेशंस को कमा के देगी। बट यस, उसके लिए जो चीज करना है, आपको पसंद है या नहीं है कोई पूछने नहीं आ रहा है, आपको जो करना है वो करना पड़ेगा। अच्छा सुशील सर, आपके जर्नी में 5 ऐसे कौन सी मिस्टेक्स है जो सेल्स या कंपनीज में रहती है, सेल्स डिपार्टमेंट में दिखने को मिलती है हमेशा? बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। पहली बात तो हायरिंग मिस्टेक। ओके। सेल्स पर्सन को सही तरीके से हायर नहीं किया जाता। सेकंड इज द इंडक्शन। ओके। जब हायर कर लेते हैं उसको बराबर इंडक्ट नहीं करते हैं, इसको बराबर ऑनबोर्डिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है कि लोग 1 महीने में ज्वाइन करते हैं, 1 महीने में छोड़ के चले जाते हैं, राइट? लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर नहीं है। कंपनी बनाई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई है, बट कंपनी में जो एक कल्चर, सी एवरी फैमिली हैज अ कल्चर, इट्स ड्रिवन बाय अ कल्चर। वो कल्चर सही है गलत है, आप और मैं कोई नहीं है उसको जज करने के लिए, बट कल्चर तो है, राइट। वो सही है गलत है, आप जो आपके लिए सही हो सकता है मेरे लिए गलत हो सकता है, जो मेरे लिए गलत है वो आपके लिए सही है, बट कल्चर तो रहता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक कल्चर होना चाहिए। ओके। और लोगों को आपको उस कल्चर में इन्वॉल्व कराना जरूरी है। ओके। तो वो इन्वॉल्व करा नहीं पाते, वो कल्चर में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ओवरऑल द टीम कभी बन नहीं पाती है, वो कोलैप्स होती रहती है। ओके। आज बनाई, 6 महीने के बाद फिर लुढ़क गई, फिर 6 महीने के बाद लुढ़क गई, फिर बनाओ, फिर करो, वो तो वो कल्चर डालना बहुत जरूरी है। Yes, system and process is very important. Individualistic modulation is very much needed. Okay. That means you need to, just because you started a business, it doesn't mean that ki you know everything now. In fact, if you have started a business, you need to learn lot many things now. Right. See, it's like that. If you are a programmer, and you are working for an IT company, आपको C++ आता है, आपको Python आता है, आप Java आता है, आपने अपना काम चल रहा है। Now if you open an IT company, आपका सिर्फ ये C++, Python और Java की वजह से कंपनी नहीं चल सकती है। नहीं। अब आपको HR सीखना पड़ेगा, अब आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अब आपको मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, सेल्स सीखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी सीखना पड़ेगा, सब। In fact, the moment you think about getting into entrepreneurship, you have to go back to the school. And people has a wrong notion about it. उनको लगता है business is a freedom. I'm sorry, yes, it gives you freedom, but not initially. Initially, it will ask you to struggle and slog much more than even an employee. So if you're mentally prepared for it, then only step into it. फिर आने के बाद फिर मार्केट को रीजन दो, मार्केट का बहाना बनाओ कि मेरा बिजनेस नहीं चला बिकॉज मार्केट डाउन था। आई डोंट बिलीव इन दैट। अच्छा सुशील सर, तो how do you provide a solution to all of these problems to the entrepreneurs? What's your key, I can't say as a service or anything, but आप solution क्या provide कर रहे हो? See, as I said, एक entrepreneur का objective क्या है? To take the business to the next level. Right. कोई भी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए there are some 8 pillars which you need to work on.
Okay. right? Management and admin, human resource, finance, operation, sales, marketing, leadership. Okay, these are the pillars जिस पे अगर सही तरीके से काम किया हम्म, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 0 से 100 करोड़ पे लेके जा सकते हो। right. ये सबको, अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम सुना, नहीं. ये सबने सुना है और सबको मालूम है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट these 8 pillars, who are the leaders on these 8 pillars is the question. Do you have the best leader in HR? Do you have the best leader in marketing? Do you have the best leader in sales? Do you have the best leader in management? Do you have the best of the CEO? No. 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 Now, when you don't have to, MSMEs, they work in a restricted environment. अपने पास पैसा गिना चुना होता है, बिजनेस वॉल्यूम एंड वैल्यू से भी रेस्ट्रिक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 टन का है, आपको ऑर्डर मिल गया 10,000 टन, करोगे क्या? बरा. राइट, आउटसोर्स करना पड़ जाएगा, मतलब यू कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। Right. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन इज द नॉलेज। ये 8 पिलर्स का बेस्ट आदमी और बेस्ट नॉलेज आपके पास है ही नहीं। आपके पास मतलब एमएसएमई के पास MSME. है ही नहीं। Right. जब एमएसएमई के पास है ही नहीं तो करेगा, और इसीलिए लीडरशिप ऑन दिस ऑल 8 पिलर्स डगमगाती रहती है, और इसीलिए एक साल अच्छा जाता है, एक साल नीचे जाता है, एक साल ऊपर। तो अच्छा, ये मैं बता दूंगा आपको ये नॉलेज कहां से और ये 8 पिलर्स पे बेस्ट आदमी कहां से लाना चाहिए। ले आइए, हाँ. आपकी कंपनी को बना देगा, ये भी लिख के देता हूं, मैं गारंटी देता हूं, आपकी कंपनी को बना देगा वो बंदा। आईआईटी चले जाइए, आईआईएम चले जाइए, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, इतने सारे आईआईएम से पिक अप द बेस्ट मैन फ्रॉम दैट लॉट। वो आएगा क्यों? पैसे के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, वो अगर गूगल को 10 करोड़ का सैलरी मांगेगा तो शायद आपसे 50 करोड़ मांगेगा, अगर आना चाहे तो। Right. है ना? और आपने उसको 50 करोड़ दे भी दिए, तो क्वेश्चन वही है जो आपने पूछा, वो आएगा क्यों? मतलब वो भी मिलेगा नहीं, है ना? Right. तो इसका मतलब यह है कि इंडियन एमएसएमई को जो मिलना चाहिए वो कभी मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा, है ना? यहां चेज कम्स इनटू पिक्चर। Okay. So you can say Sushil Agarkar and Chase becomes like a CEO of your company. And then you don't have to spend crores. You get, as I said, I'm not a consultant, I'm not a trainer. I lead from front. मतलब आपकी सेल्स टीम को रिक्रूटमेंट से लेके उनको रिक्रूट करना, उनको ऑनबोर्ड करना, उनको ट्रेन करना, उनको डेली मॉनिटर करना, उनको रिव्यू करना, उनको रखना, उनको निकालना, उनका प्रमोशन, everything is been done by me. The sales team starts reporting to me. Okay. Now, as I said, I have sales practicing. I'm practicing sales since last 35 years. 35 years. 35 साल का बंदा और 35 साल का एक्सपीरियंस किसी को अगर है, उसको अगर आप मार्केट से रिक्रूट करने जाएंगे, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ सैलरी ही माइट आस्क? Can't imagine currently. मैं बताता हूं, मार्केट इफ ही इज रियली गुड, महीने का 7 से 8 लाख रुपए कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, बेयर मिनिमम, मतलब 1 करोड़ का पैकेज, बराबर। और अगर मैं बोलूं आपको ये, अच्छा, और उसके भी छोड़ के जाने के फुल चांसेस है। हाँ, क्योंकि आपको ज्वाइन करेगा, जिस दिन उधर से रिलायंस ने बुलाया उस दिन 6 महीने में आपको छोड़ के जाएगा। ये सब आपको, इफ यू गेट इट एट 10%, 15% ऑफ दैट अमाउंट विथ अ गारंटी दैट जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, द फर्स्ट ईयर एसोसिएशन विल नॉट कम टू एंड।
Make sense or no? Absolutely. This is what the chase does. So we lead from front. We take the personal guarantee of your result, your business. Yes, but you need to continue. Absolutely. प्रॉब्लम ये होता है एंटरप्रेन्योर्स का ना, तो वो बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स का दिल बड़ा मजबूत होता है. वो मजबूत दिल कहाँ होता है मालूम है? जहां उसको रिस्क लेना होता है वहां. राइट. लॉजिकल रिस्क पे नहीं. वो ये कभी नहीं सोचता कि यार अगर मेरे को 15 लाख रुपए में ये बंदा मिल रहा है जो नॉलेज पूरा मिलेगा, टीम भी हैंडल करेगा, रिजल्ट भी निकालेगा, बंदा छोड़ के गया तो नया लेगा, फिर से ट्रेन करेगा, फिर उस पर क्वेश्चन मार्क पूछते हैं, तो उसको डाउट करते हैं. सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग. एंटरप्रेन्योर्स हैज टू clear their mind, give a mind shift, total 360 degree. Start thinking out of the box, challenge their own status quo, उनका खुद का काम करने का तरीका. उतना भी कर दिया तो एक शिफ्ट अगर 1% से भी आया ना, that 1% will be double his turnover. That I can assure you. Right. So, can you elaborate about your step-by-step processes towards providing the solutions to the SMEs or in sales, Okay. particularly? Ideally, whenever I take any project, what I do is, as I said, it's not a client or a consultant relationship. I'm a part of your organization. Right. So a whole day I spend understanding that client's product, client's own resources. Because many times I've seen consultants, they come and say कि सर बड़ा ऑफिस ले लो, बड़े लोग ले लो. I don't believe in that. I believe in one thing. आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं, क्या उन्हीं को यूज करके बड़ा बनाया जा सकता है? Because that is the basic job of an entrepreneur. Lower level resources को ऊपर लेके आना, right? So मैं फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठता हूं, वो बिजनेस को पूरा समझता हूं. बिकॉज एक ही इंडस्ट्री में दो बिजनेस के चैलेंजेस, डायनामिक्स सब अलग होते हैं. एक ही बिजनेस पे दोनों, Right. एक ही इंडस्ट्री में, पर इनके चैलेंजेस, इनके लोग, इनका काम करने का तरीका, थॉट प्रोसेस सब कुछ अलग होता है. सो उसको समझना जरूरी है. Then I sit with an entrepreneur, prepare a complete game plan, what they want to achieve in next 5 years and 10 years. Okay. उस हिसाब से उसका रिवर्स इंटीग्रेशन करके what we need to do, what kind of people will, and specifically when we are talking about sales and revenue department, तो किस टाइप के लोग आपको लगेंगे, कैसे लगेंगे, कहां से मिलेंगे, वो पूरा गेम प्लान बनाते हैं. वो गेम प्लान बना के वी स्टार्ट रिक्रूटिंग. उस कंपनी के लिए हर एक इंटरव्यू मैं लेता हूं. Okay. आई पर्सनली टेक द इंटरव्यूज, ताकि गलती से भी कोई गलत बंदा ऑन बोर्ड ना हो जाए. बिकॉज वन रॉन्ग हायरिंग, एक मिस हायरिंग इज गोइंग टू कॉस्ट यू 6 months ऑफ टाइम एंड मनी. Right. एक बार बंदा जुड़ गया, 6 महीना वो आपसे पगार भी लेगा और आपका 6 महीना भी लेगा. और कुछ काम भी नहीं है. काम हो गया तो अच्छी बात है, पर नॉर्मली देखा गया काम होता नहीं है. सो कम से कम मिस हायरिंग के चांसेस कम हो जाते हैं जब एक बार आप एंटरप्रेन्योर खुद मिलते हैं, एक बार मैं मिलता हूं, और मैं अनबायस मिलूंगा बिकॉज मुझे जल्दी नहीं है लेने की. राइट. एंटरप्रेन्योर का नुकसान इसमें क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज मेरा टाइम कहीं भी स्टार्ट ही नहीं हुआ. बिकॉज द पर्सन 2 महीना लग गए आदमी को ढूंढने के लिए, इसका मतलब नहीं है हमारे एसोसिएशन के 2 महीने गए. राइट. कुछ नहीं गया है. बिकॉज हमारे एसोसिएशन का बेस एक ही है, रिजल्ट. तो बिल्ड करने में टाइम लग सकता है. मुझे अगर काम खत्म करना है तो ओवरनाइट बंदा भी आ जाएगा, रिक्रूट भी हो जाएगा, ट्रेनिंग भी हो जाएगा और साल खत्म भी हो जाएगा. बराबर. बट अगर मुझे रिजल्ट देना है तो आई हैव टू बी केयरफुल.
सो बंदे को लेना, उसको ऑनबोर्डिंग करना, उसका ट्रेनिंग करना, उसका मॉनिटरिंग करना, उसका KRA KPI डिफाइन करना, उस KRA KPI के हिसाब से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करना, उसका वीकली रिव्यू लेना, उसका रिपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर्स को देना, राइट, मंथली रिव्यू लेना। आइडियली एक सेल्स हेड को जो काम करना चाहिए वो मैं और मेरी टीम पूरी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए करती है। ओके, मतलब मेरी टीम कंपनी से कम 4 से 5 लोग आपकी कंपनी पे काम करते हैं। इट्स नॉट ओनली सुशील आगरकर, 4 से 5 लोग। उन लोगों के साथ उनकी प्रेजेंटेशंस प्रैक्टिस करवाना, उनके साथ फील्ड पे जाना। हर महीने मेरी टीम फील्ड पे जाती है चेक करने के लिए कि जो पढ़ाया वो आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मैंने सेल्स का ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है जिसकी वजह से आप और मैं फेल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा सेल्स टीम को ग्रूम करने के लिए, बनाने के लिए और कोई तरीका है ही नहीं। और जो चीज मैंने आज आपको बताई, ये चीज कोई भी इंप्लीमेंट कर दे, कोई भी, 100% गारंटी देता हूं कि वो सेल्स टीम परफॉर्मिंग बन जाएगी। कोई भी कर ले, कोई भी इंप्लीमेंट कर दे इसको। यस, बट सेल्स मैनेजमेंट ये इंप्लीमेंट करते वक्त यू नीड हाई लेवल ऑफ नॉलेज, हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन, पैशन एंड डेडिकेशन। सेल्स में काम चलाओ काम नहीं चलता है। तो अगर आपने सोचा मैं आज टीम का रिव्यू नहीं लूंगा, कर लेता हूं, सेल्स में ये लैंग्वेज नहीं चलती है। और वर्ल्ड आउटसाइड दिस रूम 99% of salespeople uses this language. Yes. And I said, ये चलता ही नहीं है. So you have to do whatever has been decided. You know, it's been 25 years precisely, I should say. आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कोई मीटिंग दी और मैंने मीटिंग कैंसिल की. Not even once. या मैंने पोस्टपोन कराई. आपकी तरफ से पोस्टपोन हो सकती है, मेरे तरफ से नहीं होगी. उस लेवल का डिसिप्लिन चाहिए अगर आपको अपनी सेल्स टीम बढ़ानी है तो. सो या तो आप बनाइए या तो हमें. राइट. सर, आपका और एक प्रोग्राम है फाइटर. व्हाट इज दैट प्रोग्राम? You know, Fighter is a flagship program. It's like taking out your version 2.0. Okay. एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ कैसा होना चाहिए? As I said, Fighter is not a program जो आप, you say it program, I say it as ये जीने का तरीका है, ये एक लाइफस्टाइल है. Okay. What it stands for? What it stands for? F stands for fast, right? I stands for inspiring. G stands for go-getter. That means जो सोचा है वो तो चाहिए ही चाहिए. When I say I stands for inspiring, मतलब आप में कोई एक बात तो हो जिसको देख के दुनिया में कोई तो सोचे कि मुझे आपके जैसा बनना. ओके. कोई तो एक बात हो. राइट. राइट. अगर आप में कोई बात ही नहीं है तो आप भी वो दुनिया के जो 200 करोड़ लोग हैं उनमें से एक है. या तो वो एक चीज बना लीजिए. राइट. G is go-getter. H is holistic. As I said, entrepreneurship is all about having knowledge on all possible industries. आपके पास या तो उन बंदों को रखो या तो आप नॉलेज गेन करो. ऑप्शन नहीं है. सो हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए. मुझे इफ आई एम स्टार्टिंग समथिंग, I need to know industry, I need to know people, I need to know strategy, I need to know everything. I need to work on myself holistically. Right. Not only here, physically also. Okay. Physically. आप 200 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं, अगले साल 4 साल के लिए आप खुद बेड पे लेट गए 4 साल के लिए, क्या करोगे? You have to take care of this body. Right?
holistically. T is tough. ये बंदा छोड़ के जाएगा, मेरा 20,000 का नुकसान होएगा, ये सोच वो टफ आदमी की सोच नहीं है. ये सोच वो टफ आदमी की सोच नहीं है. टफ आदमी बोलता है गया ना, जाने दे, दूसरा लेके वापस बनाऊंगा. जब एक मशीन खराब हो जाती है तो आप क्या बोलते हो कि आज के बाद मशीन नहीं लाऊंगा? क्या आप ये बोलते हो? नहीं. उस दिन रात को जाते हो, मशीन दूसरा लेके आते हो. यही जुनून, यही पागलपन सेल्स टीम के लिए क्यों नहीं? पॉइंट है. तो ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए. तो दैट इज, यू नीड टू हैव दैट टफ एटीट्यूड. E stands for energetic. मतलब आप पहले 10 साल, 15 साल ऑफ योर बिजनेस, आई वुड से यू आर नॉट अलाउड टू टेक अ लीव. लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट, फिर आप अपने हिसाब से आओ, अपने हिसाब से जाओ. मैं बोला यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन रीचिंग ऑफिस, यू शुड बी द लास्ट पर्सन लिविंग ऑफिस. पहले 10 साल. राइट. अगर वो 10 साल आपने कर लिए बराबर से विदाउट टेकिंग अ लीव, उस शिद्दत से काम करने के लिए 365 डेज इनटू 20 आवर्स डेली, यू हैव टू हैव दैट एनर्जी पावर हाउस. आप बीमार नहीं पड़ सकते. राइट. आप मेरी टीम को कभी पूछिए, लास्ट 20 years, 25 years, आई हैव नेवर टेकन अ लीव सेइंग दैट आई एम नॉट वेल. ओह, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आदमी बीमार नहीं पड़ा. ऐसा हो नहीं सकता लूज मोशन नहीं हुआ. ऐसा हो नहीं सकता बुखार नहीं है. नॉट इवन अ सिंगल डे. आई कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज मेरे कंपनी को सिर्फ 8 साल हुआ है अभी. आई कैन नॉट अफोर्ड. वॉट एवर इज आई एम टेलिंग यू, इट्स एप्लीकेबल फॉर मी ऑल्सो. राइट. एंड आर स्टैंड्स फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड. ओह, सो ये फाइटर एक 4 महीने का प्रोग्राम है. ओके. एंड मैं हमेशा, पीपल हु एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम, आई ऑलवेज से, अपने आप को वीडियो शूट करके रख लो. यू आर नॉट गोइंग टू सी दिस पर्सन एवर अगेन, एवर अगेन. आपका बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, everything will change. This person, and it is a one-way process. That's why I say it's a transformation, one-way process. You will not come back to this person again. So Mr. Vishwesh 2.0 is going to be the altogether a different person, right? So that is what the fighter is all about. So it's a lifestyle. Lifestyle. अच्छा, Sushil sir, apart from that, you have also started a non-profit organization company, which is helping MSME regarding their systems and processes and everything. So, just Okay. जाने से पहले उसके बारे में आप बोल दीजिए. See, मैंने जब ये कंपनी चालू की थी ना, न्यू चेज कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको अभी प्राइवेट लिमिटेड, अल्फा चेज एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, मेरा एक गोल था. And that goal was to create 1 million success stories by 2030. Okay. Fortunately or unfortunately, whatever you can say, it's getting difficult to reach that goal. Okay. Why? Why? In last 8 years, when I started, fees बहुत कम था. Inflation बढ़ा, services बढ़ी, commitments towards the client बढ़े. I started taking only limited clients now. I don't work for each and every one. I select my clients whether I want to work. So in a year, I ideally take 50 to 60 clients only. Okay. Because of which, so that ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आना चाहिए जहां मेरा क्लाइंट मेरे को टाइम मांगे और मुझे ये बोलना पड़े कि सर अभी 1 हफ्ता तक तो टाइम नहीं है. माई क्लाइंट्स विल गेट, उन्होंने मेरे को टाइम मांगा, आज भी मेरा कमिटमेंट वही है, उन्होंने टाइम मांगा, दे विल गेट अ टाइम इन नेक्स्ट 24 आवर्स. Oh. नेक्स्ट 24 आवर्स मिलना ही मिलना है, राइट? ये चीज को जिंदा रखने के लिए, और क्या हो गया, हैविंग अ कंसल्टेंट, हैविंग अ कोच, हैविंग अ ट्रेनर, एज यू सेड, वो एंटरप्रेन्योर जो सोचता है कि ये खर्चा फालतू का है,
वो तो अपने सेल्स के बंदे के ऊपर खर्चा जो करता है उसको फालतू समझता है, मेरे को देगा तो क्या सोचेगा, सोचो। है ना? तो बट क्या होता है, एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, वो एक बच्चा जो जल्दी नहीं समझ रहा है, एक टीचर के लिए वो भी सेम है और वो भी सेम है। राइट। सो ये जो फर्स्ट आता है ना, ये सीखने की इच्छा रखता है, बार बार मेरे पास आता है, सीखता है। कि इसके पास मैं 50 बार जाता हूं ना तो भी इसको वैल्यू नहीं है। नहीं। तो अल्फा चेज एंटरप्राइज फाउंडेशन ये वो संस्था है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 रजिस्टर्ड, जिसमें आप रजिस्टर कीजिए एंड यू गेट द सपोर्ट इन ऑल द डोमेन्स जो आपको बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, स्ट्रेटेजी, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, वॉट एवर यू नीड, यू विल गेट दैट सपोर्ट। ओके। जिसके लिए एक बिजनेस ओनर्स को लाखों, कम से कम 20, 25, 30 लाख रुपया साल का खर्चा करना पड़ता है। एंड फॉर माई दो स्टूडेंट्स हु आर स्टिल इन द लोअर केजी बट हैज दैट, इफ गिवन अ चांस प्रोबेबली दे विल ग्रो, उनको हेल्प करने के लिए आइडियली आई विल से एक बार हम लोग फैमिली को डिनर करने जाते हैं, लेके जाते हैं। राइट। एक डिनर में 2-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए तो खर्चे होते ही होते हैं, बेयर मिनिमम, नॉर्मल। बराबर। आई विल से खर्चा उससे कम है। अब बताओ, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, यू थिंक अबाउट हायरिंग, you think about recruitment, you think about sales, you think about marketing, you think about leadership, you think about business coaching, you think about my time, you think about a dedicated consultant for him whenever he wants to give him time. ये सब 1000 रुपए में, ये सॉरी 800 रुपए महीने के, महंगा है। जस्ट लाइक फ्री। एग्जैक्टली। ये अमाउंट इसीलिए रखा है टू, बिकॉज फ्री की चीज को ना वैल्यू नहीं है। राइट। एंड वी, जिनको ये चीज में अप्लाई करना है ना, एंड दिस इट्स नॉट अबाउट कि आपने 10,000 डाल दिए मिल जाएगा, नहीं। माई टीम इज गोइंग टू स्क्रूटिनाइज, आई एम गोइंग टू स्क्रूटिनाइज यू, आर यू द रियली पर्सन जिसके ऊपर मैं अपना टाइम डालूं, बिकॉज मैं आपसे ले तो कुछ नहीं रहा हूं। बराबर। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, सो यू हैव टू गो on alphachase.org, register yourself, call us, speak to my team, apply for it, and if we award you, expenses not more than 800 rupees per month. Okay. But then you have a consultant for you. A personal WhatsApp group is created with me. My personal number is shared. और क्या चाहिए? Exactly. राइट। और आपके बिजनेस का हर एक डोमेन के लिए आपको हेल्प, एवरीथिंग, मतलब कुछ छोड़ा नहीं, एवरीथिंग इज कवर्ड। ट्रेनिंग से लेके रिव्यू कैसे लेने का, इंटरव्यू कैसे लेने का, एवरीथिंग इज बीन कवर्ड। राइट। यू डोंट नीड, इनफैक्ट सम पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो कवर्ड। यू डोंट नीड अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन आउटसाइड इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड, इफ यू आर दैट स्मॉल। एग्जैक्टली। उस मामले को भी कवर कर लिया। अब इसके बाद भी अगर कोई सीखना नहीं चाहता है तो विश्वेश जी फिर या तो वो गलत प्लेनेट पे या तो मैं। Okay. We will share your link into descriptions also. Sure. Okay, Sushil sir. Thank you very much for your time, sharing your wisdom with us. इतनी जानकारी सेल्स के बारे में आपने हम लोगों को दी, and definitely people will आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. We will share Anytime. your all Sure. the details with them so that the people can connect to you. Sure. Thank you so much. Thank you, sir.